this video we will learn the topic noun. Okay, so what is noun? All the naming words are called noun. Okay, it may be the name of person, animal, place or a thing. Okay, so let's see the definition. So I am giving you two definitions. So simple one is all the naming words are called noun, or you can write this definition also. Or you can say that words which are used as the name of person, place, animals or thing. Okay, so they are called noun. In simple terms you can say that कोई भी चीज़ का नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं. वो चाहे किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या कोई प्लेसेस का नाम हो सकता है, या कोई मोनूमेंट्स जैसे कि ताजमहल एसेट्रा. ओके, सो दीज आर कॉल्ड नाउन. सो लेट्स सी द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर. Let's see the kinds of noun. So mainly there are 5 kinds of noun. Firstly, proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun. So mainly there are 5 kinds of noun. So proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Okay, so one by one we will discuss the topic. So mainly we will discuss the first two topic, that is proper noun and common noun. Okay, so mainly what is proper noun? So proper noun means you can say that special name. Okay, that means it may be the name of person, special places or a places or a special things. Okay, let me give you one example. Suppose Taj Mahal, okay, Kolkata, Mahatma Gandhi, etc. Okay, then come to the common noun. So mainly it includes the general names. Okay, suppose boy, dog, okay, day, etc. Okay, so mainly how you will identify the types of noun, whether it is a proper noun or common noun. Now see, if I will say, suppose so see this example, Sunday is the first day of a week. Okay, so here what is the proper noun? So Sunday is the proper noun. जब हम लोग संडे बोला तो इससे समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर नेम के बारे में पर्टिकुलर डे के बारे में हम लोग बोल रहे हैं. ओके, बट इफ यू सी द डे, ओके, अगर मैंने डे बोला
कौन से डे के बारे में बोल रहा है वो हमें नहीं मालूम, सो इट इज अ व्हाट, कॉमन नाउन. ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल. Now see, Kolkata is the big city. So, which one is the proper noun here? So, see, Kolkata, yes or no? So, by the name only we can know that Kolkata is a what? It is a city. So, it become a proper noun, okay? Because it is a what? Special name. And if I will say the city, okay, so which city? We don't know. कौन से सिटी के बारे में हम लोग बात करें ये हमें नहीं मालूम. वो मुंबई भी हो सकता है, कोलकाता भी हो सकता है, गुवाहाटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सो इट विल बिकम योर कॉमन नाउन. ओके, सो वन मोर एग्जांपल वी विल डिस्कस. सी, now see this example. Diwali is the festival of light. So see, Diwali, so it will become your proper noun. Okay, क्योंकि हम लोग दिवाली बोलने से समझ में आता है कि दिवाली is a festival. Okay, but if I will say the festival, only festival, तो हम लोग किस फेस्टिवल के बारे में बोल रहे हैं वो हमें नहीं मालूम. वो चाहे होली हो सकता है, वो चाहे दीपावली हो सकता है, या दुर्गा पूजा हो सकता है, या ईद हो सकता है, या क्रिसमस हो सकता है, एनीथिंग. ओके, so from festival we are unable to know that which festival we are talking about. Okay, so it will become your common noun. Okay, now come to the, see these two pictures, both are king, but if I will ask the name of both the king, will you able to say no? Yes, so you can say only one name, that is Ashoka. सो यहाँ पे अशोका तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और वो किंग जिससे हम मालूम नहीं कर सकता है कि उसका नाम क्या है, वो कौन है, सो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा. ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं. अगेन सी दिस टू पिक्चर्स, बोथ आर बॉय, बट इफ़ आई विल आस्क द नेम ऑफ बोथ द बॉय, वुड यू एबल टू से नो? सो यहाँ पे एक बॉय जिसका मुझे नाम नहीं मालूम है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और सेकेंड बॉय का नाम अगर मैं पूछूं तो वो जैसे भीम, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि इसका नाम हमें मालूम है. तो याद रखना कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहता है पूरे सेंटेंस में. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कलेक्टिव नाउन. सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? सो कलेक्टिव नाउन में जब हम कोई भी सेम थिंग या सेम प्लेसेस या एनिमल्स के बारे में जब बोलता है, ओके, लेकिन वो ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन वन, ओके, एक ग्रुप में होना चाहिए, सो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलता है. सपोज लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. अ बंच ऑफ कीज. ओके, सो नाउ यू कैन सी हेयर बंच. सो यहाँ पे कीज, बहुत सारा कीज है, तो जब कीज का जब बहुत सारा कीज रहेगा एक गुच्छा में, सो उसको हम लोग क्या बोलेगा? बंच. सो वी विल नॉट से मोर कीज आर देयर, सो हम लोग वो पूरे कीज को एक साथ जब हम लोग कीज को बोलेगा तो वो बंच हो जाएगा. ओके, सो वी हैव गिवन द स्पेशल वर्ड हियर, दैट इज बंच. सी द मोर एग्जाम्पल. अ बुके ऑफ फ्लावर्स. नाउ सपोज आप जब किसी को फ्लावर्स देते हो बर्थडे उडे में, तो बहुत सारा फ्लावर्स रहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को. सो हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से नहीं बोलता है. वो फ्लावर्स तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहता है, बट वो पूरे फ्लावर्स को जब हम लोग एक साथ देते हैं कलेक्टिवली, सो वी विल से द बुके. ओके, सो अ बुके ऑफ फ्लावर्स. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, ओके, इट इंक्लूड्स द फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. सपोज mainly these all are what? Intangible thing that we cannot able to touch. Okay, suppose love, okay, sad, happy, etc. Now see, love, sad, happy, these all are what? These all are the emotions. इसे हम लोग टच कर सकेंगे क्या लव को? नहीं. हैप्पी, हम लोग हैप्पी हो सकता है, फील कर सकता है, बट वी आर अनेबल टू टच. यस और नो? सो this becomes what? Abstract noun. So under abstract noun you just remember that it includes emotions, feelings or any ideas. Okay, now see the last thing, last topic, that is material noun. So what is material noun? Under this you will get all the living thing and the non-living things. Okay, it includes all the non-living things. ओके, सपोज जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स, सपोज चेयर, टेबल, फैन, एसेट्रा. ओके, सो व्हाट आर मटेरियल नाउन? सो मटेरियल नाउन आर मेनली द नॉन लिविंग थिंग्स दैट वी कैन टच. ओके, सो दीज आर द types of noun that I have explained in this video. Okay, I hope you have understood. Thank you. Please subscribe our channel. Thank you.